پہلا طبقہ دیندار ہے، پریشانی آئی وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرا طبقہ پڑھا لکھا ہے، سرکار میں بھی عہدیدار ہو گیا، دکھ درد پریشانی آئی وہ بھی کہتا میں فرنٹ لائن پہ آ کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تیسرا طبقہ ہو گئے ہمارے بیپاری، ان کا کوئی اگر سیمینار ہو چلے جاؤ تو وہ ایک ہی بات کہیں گے قوم کو، ابے تم نٹھلے گھوم رہے کام ہی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے بتایا کہ آج مسلمان 3 وجہ سے پریشان ہیں۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے گا۔ 3 طبقے ہیں دنیا میں، 3 طرح کے لوگ۔ پہلے سب دھرم والے، جن کو ہم آج کل اپنے مسلمانوں میں گلوں تو مولوی ہو گئے، تبلیغی جماعت والے ہو گئے، سنی جماعت والے ہو گئے، جماعت اسلامی والے ہو گئے، جتنے ہیں یہ، ان کے جلسے میں جائیے تو ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں۔ جتنے بھی دھرمی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دھرم سے جڑو، جڑ گئے جی، لیکن جب کوئی پریشانی آئی، دکھ درد آیا، مصیبت آئی تو یہ بولتے ہیں کیونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، یہ ہمارا کام، باقی ہمارا کام نہیں ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ کا کام صرف مذہب تک تھا تو آگے اب آپ کا نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ آ جائیے مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، ان کا کوئی پروگرام ہوگا تو چلے جاؤ، وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کرتے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم نے شکشا نہیں لی، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی چلے جائیں ان کے پروگراموں میں، انہوں نے ایک ہی بات رونا ہر بار، 70-80 سال ہو گئے، وہ مولویوں کو رونا روئیں گے کہ تم نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، بھائی انہوں نے تو ہر مسجد میں ایک امام دے دیا، تم بھی 70 سال سے رو رہے ہو، تمہارے پاس تو کوئی IAS IPS تیار نہیں ہوئے۔ اچھا جی چلو جی تمہاری بات مان لیتے، پڑھو۔ اچھا جی جتنے لوگ پڑھ لکھ کے افسر لگ گئے، ڈگری والے لگ گئے، پھر جب کوئی پریشانی کا دن آیا، دکھ درد کا دن آیا، مصیبت کا دن آیا تو بولتے ہیں کیونکہ ہم ملازم ہیں، ہم تمہاری مدد جی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ پہلا طبقہ دیندار ہے، پریشانی آئی وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ دوسرا طبقہ پڑھا لکھا ہے، سرکار میں بھی عہدیدار ہو گیا، دکھ درد پریشانی آئی وہ بھی کہتا میں فرنٹ لائن پہ آ کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تیسرا طبقہ ہو گئے ہمارے بیپاری، ان کا کوئی اگر سیمینار ہو چلے جاؤ تو وہ ایک ہی بات کہیں گے قوم کو، ابے تم نٹھلے گھوم رہے کام ہی نہیں کرتے، تم کام کرو تو بڑی عزت مل جائے۔ اچھا جی کام کرنے لگے، بہت پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ پھر جب دکھ درد ہوا، تکلیف آئی، ان کے پاس گئے کہ یار ہم تو بیپاری لوگ ہیں، ہم تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، دیندار بھی نہیں کر سکتے، دنیا دار بھی نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے لوگ بیپاری بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تینوں طبقے اپنی اپنی جگہ ناکام کیوں ہو گئے؟ کیونکہ تینوں نے دین کو پکڑا، ایک نے پکڑا عبادت کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا تعلیم کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا حلال رزق کمانے کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے ایک آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کرو بھائی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اور بولو روٹی کماؤں گے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بس پکڑ لیا، بس دینداروں نے پکڑ لیا، پڑھنے لکھنے والوں نے یونیورسٹی پکڑ لی، کاروباریوں نے بیپار پکڑ لیا، اگلی آیت بھول گئے، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو لیکن
वला तफर्रकू, फरमाया लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में एक दूसरे की गर्दनें ना खींचो, आपस में एक दूसरे की बुराइयां ना करो, आपस में एक दूसरे के पांव ना खींचो। और ये कर ही रहे हैं। पता लगा कि मजबूती तो तब आएगी, ये अच्छे रास्ते पे तब जाएंगे जब अल्लाह के कहना मानने के साथ मुकम्मल कहना मानेंगे, मतलब अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे लेकिन आपस में लड़ेंगे नहीं। अगर हमारे देश की बात कर लूं तो भारत के स्लोगन में एक ही बात सबसे आगे लिखी जाती है कि भारत की विशेषता ये है कि यहाँ अनेकता में एकता है। ये फलसफा समझ नहीं आ रहा, अलग अलग बैठे हुए हैं। ये पता नहीं लगा कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि आपस में निफाक ना करो, आपस में दुश्मनियां ना करो। वैलुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल्लुमाजा, कुरान ने कहा वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के ऐब तलाश करते फिर दूसरों को बताते फिरते हैं। तबाही है कुरान ने कहा उन लोगों के लिए। तो ये समझ नहीं आई बात कि तालीम के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी हो, औलमा साथ में होंगे, व्यापारी साथ में होंगे, पढ़े लिखे लोग साथ में होंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी जो सालों में बनती है वो दिनों में बन जाएगी। गरीब की मदद करनी होगी, औलमा साथ में होंगे, वो बताएंगे इज्जत से करनी है, रात को जाना है, छुप के देके आना है। व्यापारी साथ में होंगे, वो कहेंगे हमारा माल दौलत ले लो। पढ़े लिखे लोग होंगे, वो कहेंगे सरकार से हम परमिशन ले देते हैं, तुम जाके मुसीबत के टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी तुम सड़क के ऊपर जाके अपना काम कर सकते हो। पता ये लगा कि गाड़ी तो इनकी तब चलेगी जब ये तीनों तबके आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक के साथ चलने वाले। रब्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। अगर आप में आपस में प्यार नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, अगर आप ये समझते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अगर एक मुसलमान ये समझता है कि मैं किसी हिंदू भाई का जूठा पानी नहीं पी सकता हूँ, मैं किसी सिख की कटोरी में खाना नहीं खा सकता, मैं किसी ईसाई से गले नहीं मिल सकता, मैं किसी दलित के बर्तन में नहीं खाना खाऊंगा, फिर अभी इस्लाम अंदर नहीं उतरा, ऊपर ऊपर ही रह गया है। इस्लाम में तो ये बातें, इन्हीं बातों को तो तोड़ा, तभी तो हम मुसलमान हुए। हम क्यों मुसलमान हुए भाई? हम मदीने से आए हैं, ये इस चमड़ी में खून अरब का घुसा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझाई तो ये हमारे बुजुर्गों की दिलों में घर कर गई कि अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए, और जिनको अल्लाह ने इज्जतदार बनाया हो वो दूसरों की इज्जत छीनने लगे तो क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है। अल्लाह ने आपको इज्जतदार बनाया, आप लोगों को इज्जतें बांटेंगे जी इंशाअल्लाह। लोगों को इज्जतें बांटिए। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात मुसलमान देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओज हमारे पास हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी का निज़ाम हमारे पास है पूरी दुनिया में, लेकिन हम किसी बेटी को कंबल पकड़ाते हुए फोटो नहीं खिंचवाते, हम किसी गरीब को राशन का डिब्बा देते हुए उसकी तस्वीर नहीं छापते। हम दूसरे का एहतराम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे रसूल ने कहा कि जब मुसलमानों एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। इंसानियत के फलसफे को पकड़ लो। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हमेशा याद रखें, कायनात में जितने लोग हैं जो मर्जी कहें, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। इस्लाम की यह खूबी है, इस्लाम ने कभी किसी की बुराई नहीं बयान की। क्यों? मेरे रसूल ने हमें दर्स दिया। हम लोगों की बुराई करने के लिए नहीं आए, हम तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाने आए हैं। आपने अखबार देखा है, मारुति की इश्तिहार आता है, टोयोटा का इश्तिहार आता है, उस इश्तिहार में क्या लिखा होता है कि टोयोटा इतनी अच्छी है, मारुति इतनी अच्छी है। कभी आपने ऐसा इश्तिहार पढ़ा कि टोयोटा ने लिखा हो कि महिंद्रा की गाड़ियां खराब है मत खरीदो, महिंद्रा ने लिखा हो कि मारुति की ना खरीदो? नहीं नहीं, ये फलसफा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं बने, हमें ग्रास रूट पे अपना प्रोडक्ट अच्छा करना है भाई। करेंगे इंशाअल्लाह। अपना प्रोडक्ट अच्छा करना है, अपना किरदार, अपनी जुबान, अपने मामलात
अपना उठना बैठना, अपना कारोबार हमने अच्छा करना है। घाटा पड़ता है पड़ जाए, लेकिन हराम का लुकमा हमारे घर में आना नहीं चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह दिल की तख्ती पे लिख के ले जाइए। हम लोगों ने कॉलेज बनाना शुरू किया, क्यों? हमारी नीयत ये नहीं थी कि मुसलमानों की बेटियों को पढ़ाना है, नहीं। आपने शायद मेरा वो बयान सुना हो, हमने कहा कि हम खुद भी पढ़ना चाहते हैं, दूसरों को भी पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इस काम में चलेंगे कि सिर्फ हमें ही आगे बढ़ना है, नहीं नहीं, ऐसे इस्लाम नहीं चलता। अगर कोई आदमी अभी छत पे खड़ा हो, आप 5-7 लोग उसके पास जाएं, उसको बोले नीचे उतर, वो कहे मैं नहीं उतरता, तो आप उसको जबरदस्ती धक्का देंगे, वो उतरता नहीं है। जब आप धक्का देंगे ना तो एक एक सीढ़ी उतरेगा आपके जोर की वजह से। लेकिन आप याद रखें, जब वो नीचे आ जाएगा, आप सब भी उसके साथ कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। लोगों को गिराने की कोशिश ना करो। जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं वो भी कामयाब नहीं हो सकते। मजा तो उसमें, बस्ती उजड़ना आसान है। मैं कोई भी काम करता था बचपन से, अब्बू जान को कई बार कहना फलां इमारत ऐसे तोड़ के ऐसे बना दें, तो मेरे अब्बू ने मुझे पास बुला लेना, कहना यार पुत्रा बह जा, और एक ही बात समझाने का, यार बस्ती उजड़ना आसान है, बस्ती बसते 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 बस्ती है। आग लगाना कमाल की बात है, कोई पेड़ लगा देना कमाल की बात है, किसी को भड़का देना कोई कमाल की बात है, किसी गिरते हुए को सहारा दे देना कमाल की बात है, किसी को नफरत के लिए तैयार कर देना कमाल की बात है, किसी के साथ किसी की नाराजगी को दोस्ती में बदलवा देना यह कमाल की बात है। ऐसे भी सोचना शुरू करें कभी कि हमने नमाज पढ़नी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फलदार दरख्तों की आबियारी करो, खुद मदीना मुनव्वरा में अपने हाथ से दरख्त लगाए। साहबा को फरमाया खेतियों को नुकसान ना हो जाए। फरमाया दरिया के किनारे बैठे हो, पानी उतना इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, बाकी पानी गंदा ना हो जाए। यार कैसे सोचते हो मजहब से? अजीब बात है, मजहब सिर्फ मस्जिद में नहीं है। मस्जिद तो उस मजहब की वो ताकतवर बुनियाद है जिसने आपको खूबसूरत इंसान बना के इस समाज के अंदर भेजना है। मस्जिद को इस काम के अंदर लेके आइए। इन नमाजों को ऐसा बना लीजिए कि नमाजों की वजह से लोग आपको कहें कि ये बंदा नमाजी है, झूठ नहीं बोलता, ये बंदा नमाजी है, बेईमानी नहीं करता, ये बंदा नमाजी, इसकी आंखें झुकी हुई होती हैं। लुत्फ यही है, जिंदगी का लुत्फ यही है। अगर आपने जिंदगी अभी तक जी नहीं है, नाराजगियों में ही गुजार दी सारी जिंदगी, फिर तो कोई लुत्फ का काम नहीं ना किया। यार कुछ तो ऐसा करो कि किसी नाराजगी को अपने अंदर ढाल लीजिए, कि हमने अपना कोई दिल तो बड़ा करो। यार मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, आपके यहाँ भी 2-4 ऐसे हैं यार, जिसको भी कहते मुंह पे कह देता हूं। ऐसे लोग हैं बहुत से आपके दोस्तों में जो बैठ के बड़े फख्र से ये बात कहते हैं, यार मैं तो मुंह पे कहता हूं जो कहता हूं। जो बेईमान है ऐसा कहते हैं। सुन लो बात, जो दोस्तों में ऐसा बंदा हो जो आपको कहता हो कि मैं हर एक के मुंह पे कहता हूं सच्ची बात, ये सच्ची नहीं कहता, ये उसकी बेइज्जती करता है। सच्ची कहनी होती तो रात को घर पे जाके ना क्या कहता कि मेरे भाई फलां मामले में तेरी इज्जत लुट रही है, मैं तेरा साथ देता हूं, अपना ठीक कर ले। ये सच्ची नहीं कहता। इसका दिल इतना छोटा है कि अपने भाई का एक ऐब नहीं छुपा सका। इसका दिल इतना छोटा है कि अपनी दोस्त की बेटी की एक बात अपने दिल में नहीं छुपा सका। इसके पेट में दर्द होता रहता है, किस किस को बताऊं। कुरान ने कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमजा तिल्लुमजा, फरमाया बस तुम्हारे लिए रगड़ा लगने वाला है। अच्छा, हमने सोचा कुरान मुर्दे बख्शवाने के लिए, नहीं नहीं, कुरान इसलिए नाजिल हुआ कि हमें सीधे रास्ते पर लेके आना है। वक्त भी हो गया है, बातें बहुत सारी थी, लेकिन जिन लोगों का आपने एहसास किया ना, जिनको इज्जत दी, उनको इज्जत देनी बहुत ज़रूरी थी। जिनकी हमने हौसला अफजाई की है, उनकी हौसला अफजाई करनी बहुत ज़रूरी थी। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग आइंदा और आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में ऐसे लोग आएँ और जिनकी आप लोग इज्जत अफजाई करते रहें। और बड़े ही अदब के साथ मुस्लिम महासभा को एक थोड़ी सी और गुजारिश है कि अगली बार जब आप मुझे बुलाएं तो इस ये जो आपने सम्मेलन रखा, क्या कहते हैं इसको, प्रतिभा सम्मेलन, तो डिस्ट्रिक्ट में जितने टॉपर आए हों उन सबको बुलाएं। फिर टॉपरों का फिर धर्म ना देखें, सरे की
آپ اس کا सम्मान کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ प्रतिभा جو ہے وہ पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इनका करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। जितने सरमायादार हैं उनको मैं कहता हूँ कि छुप कर गरीबों की मदद करें, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनकी फीस दें, शोर मचा के नहीं, आगे बढ़िए। बस कमाल यही है कि अल्लाह ने आपको इज्जतों से नवाजा है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलां आदमी ने दीन के खिलाफ ये बात की, फलां ने ये की। मैं यार कुछ बात है तो तभी तो कोई बात की, तुम किस चक्कर के अंदर लग गए। अल्लाह ने आपको इज्जतों से नवाजा, आप इज्जतें बांटना शुरू कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।